Welcome back, Mavericks. Let's start this episode with this video. Everything changed for me when I understood this philosophy. Learn to work harder on yourself than you do on your job. That's the simple philosophy that changed my life forever starting age 25. If you work hard on your job, you can make a living, which is fine. If you work hard on yourself, you can make a fortune, which is super fine. I didn't mind working hard on my job, but things didn't seem to change that much. Then I started working hard on myself to qualify. So let me put it in a philosophical phrase now. This is worth the price of whatever it costs for you to be here today. Here it is. Success is something you attract. Success is not something you pursue. It's something you attract by becoming attractive. And the whole scope of this we call now personal development. You can have more than you've got because you can become more than you are. If you can multiply your value by 3, by 5, you can easily multiply your income by 3, by 5, by 10. But the key to doing it is to work hard on yourself. Now, that's why I mentioned this personal development part is learning multiple skills. If it would serve you, multiple languages, okay? Working hard on yourself. You know, people are fun to work with. The key sometimes it's not fun to work with is yourself. How come I'm reluctant when I should be excited? Right? You just go through this dilemma. The work we do is fairly easy. Mr. Schoaf, my first mentor, taught me, the world is mostly full of real nice people. In fact, he said there's only about 11 or 12 real nasty, miserable, horrible people in the whole world. Now, he said they move around a lot. So you're bound to find one once in a while. But if you found one, you say, hey, there's only 11 more like you, I can handle that. There's not 1,000. But here's the big challenge, working hard on yourself. Personality and temperament and mindset, talked about culture, all the stuff necessary to individually be responsible, be a growing, attractive, powerful, skillful, communicating human being. And the world belongs to you. Hard work isn't just a choice, it's the only bridge between your dreams and reality. यूपीएससी की प्रिपरेशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, स्मार्ट वर्क तो है ही है, बट हार्ड वर्क भी है. हार्ड वर्क मीन्स आपको डेली डेली पढ़ना है. 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है. रिमेंबर, it's not the talent but the commitment to hard work that creates legends. So hard work करते रहना है daily. So let's start today's episode, that is Physiographic Division of India. This is episode 7.2. In the previous episode we discussed about the Geological Division of India. हमने अब तक समझा है कि भारत के जियोलॉजिकल डिवीज़न कैसे उसके लैंडस्केप, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ट्रजेक्टरी को शेप करते हैं. बट दिस इज द ओनली वन पीस ऑफ पजल. आज हम आगे बढ़ेंगे और फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में बात करेंगे. These divisions aren't just about the landforms. They tell us how this land interact with our economy, culture, society, and politics. Geological division explain how the land was formed. लेकिन
फिजियोग्राफी हमें ये समझाता है कि ये लैंड आज कैसे फंक्शन कर रही है। आई रिपीट, जियोलॉजी एक्सप्लेन how the land was formed. We discussed in the previous episode how Himalayas were formed, how peninsular block were formed, how plains were formed. But फिजियोग्राफी हमें ये समझाता है कि ये लैंड आज कैसे फंक्शन कर रही है एंड हाउ इट विल इवॉल्व इन द फ्यूचर. We need to understand what is the meaning of physiography. फिजियोग्राफी का मतलब क्या है? Anyone? Ritik, what is the meaning of physiography? Sir, physiography means description of uh, physical, we can say physical resources, land masses, etc. You're right, but not exactly. Saurabh? In physiography, we define the physical characteristics that are present on Earth. Okay, we can say that. Yes, sir. Note it down. Physiography refers to the description or study of the natural features which are present on Earth's surface, such as mountain, plateau, river, plain, valleys, etc. Now we understand what is the meaning of physiography. But how we use physiography to explain the division of India? Physiography of an area is the outcome of structure, processes, and stage of development. Note it down. This is very important. Physiography of an area is the outcome of first one is structure, processes, and stage of development. Now the question is, what is the meaning of all these three terms? What is the meaning of structure? Ritik, any idea? Saurabh? Sir, it states that how a specific element is built. Yeah, you can say that. Structure is about the type of rocks in the area and how they are arranged. Note it down. In this definition, in the context of this definition, structure is about the type of rocks in the area and how they are arranged. This gives the land its basic shape. And what were the processes? Saurabh? Sir, processes is like formation of rocks from start. No. Yes. जो स्लाइड में पिक्चर है, Yes, sir. अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता लग गया है. स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? टाइप ऑफ रॉक एंड हाउ दे आर अरेंज्ड. Yes, sir. Now, in these processes, how those processes shape the mountains? What are those processes which shape the mountain? We studied दो एपिसोड पहले. Weathering, sir. Yes.
These are the forces that change the land over time. For example, erosion, earthquake, glaciation. We discussed about erosion and earthquake, and glaciation means when ice sheet carved out valleys. These all are reshape the land, and these forces are always at work. जो अभी आपको पिक्चर में ये लैंड दिख रही है, ये 100 साल पहले ऐसे नहीं थी, और ना ही ये 100 साल बाद ऐसी रहेगी. ये चेंज होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी. इन द ब्रॉडर टर्म वी कैन से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. And third one is stage of development. What is the meaning of stage of development? In the context of defining the physical feature of any area or physiography of any area. What is the meaning of stage of development? Ritik? सर, जैसे ये कंटिन्यूअसली अर्थ मूव कर रही है या प्रोसेसेस हो रही हैं, Okay. तो डे बाय डे और ओवर टाइम प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस हो रही हैं, इनका जो आउटकम आ रही है उससे डेवलपमेंट हो रही है. जैसे प्लेट बाउंड्रीज इंटरेक्शन से डे बाय डे धीरे धीरे. नहीं. This is not about the plate boundary interaction. Okay. Saurabh, any idea? Sir, I think the property of rock to change from one form to another, sir. Development. You are little bit right. So note it down. The stage of development in physiography are based on William Morris cycle theory. Stage of development in physiography are based on William Morris cycle theory. It is also known as cycle of erosion. It is also known as cycle of erosion. It explains the evolution of landscape in 3 distinct stages. The first stage is youth stage, second is mature stage, and third is old stage. Note it down. 3 stages है, youth stage, mature stage, and old stage. But what is the meaning of youth stage? यू स्टेज का मतलब अभी जो लैंड फॉर्म है उस पर्टिकुलर रीजन का, वो यू स्टेज में है. कैसे? दोज लैंड फॉर्म्स आर स्टीप एंड रगड. STWP एंड रगड. RUGGED. On those area, rivers flow rapidly, cutting deep valleys. And feature includes V-shaped valleys, waterfalls, and rapids. I'll repeat. In the youthful stage, landforms are steep and rugged, river flow rapidly, cutting deep valleys, and in the processes, it is dominated by vertical erosion as rivers carve deep into the land. This is youthful stage. अब mature stage आ गई. Mature stage में क्या होता है? जो slopes होती है that will become gentler and rivers start to meander. Note it down, this word.
river meander, meander. The first point in the mature stage, slopes become gentler and rivers start to meander. Second point, valley widen, forming floodplains. In this region, erosion and deposition are in balance. और इसमें प्रोसेसेस है, लेटरल इरोजन डोमिनेट्स, शेपिंग वाइडर वैलीज एंड स्मूथर लैंडस्केप्स. यूथफुल स्टेज में क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स? लैंडफॉर्म्स आर स्टीप्ड एंड रगड, रिवर्स फ्लो रैपिडली. और मेच्योर स्टेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्लोप्स बिकम जेंटलर एंड रिवर्स स्टार्ट टू मियंडर, वैलीज वाइडनिंग, फॉर्मिंग फ्लड प्लेन्स, इरोजन एंड डेपोजिशन आर इन बैलेंस. और ओल्ड स्टेज में क्या होगा सौरभ? मेरी यूथफुल स्टेज में जो मेरे लैंड फॉर्म्स थे वो स्टीप एंड रगड थे. मैच्योर स्टेज में आते आते वो स्लोप्स बिकम जेंटलर. और ओल्ड स्टेज में क्या होगा फिर? Sir, it will start to break down. नो, ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है ना. इस थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है साइकिल ऑफ इरोजन. इसको साइकिल ऑफ इरोजन से भी जाना जाता है. ओल्ड स्टेज में क्या होगा? द लैंडस्केप इज फ्लैट एंड सबड्यूड, रेफर टू एज ए पेनीप्लेन, PENEPLAIN. In this stage, rivers move sluggishly and form extensive meanders. For example, note it down, Oxbow lakes and deltas. और प्रोसेसेस में क्या आएगा? Deposition dominates as the terrain reaches near base level. This stage of development concept emphasize the gradual transformation of landscape under erosion, though it has limitation and is supplemented by modern geomorphological theories. तो सौरभ, tell me, Yes, sir. what is the meaning of structure, processes and stage of development to define the any area through physiography? Yes, sir. Structures means the type and how they are arranged. क्या? Sir, physiography क्या rocks. Yes, types of Yes, sir. rock and how they are arranged. Yes, sir. Okay, and what about processes? That help in forming the rock, sir. Forming the rock? Yes, sir. How? Due to erosion or weathering. Erosion or weathering are forming the rock or eroding the rock? Sir, eroding the rock. Sorry. And what stage of development? It is the cycle through which. Sorry, there are 3 stages in cycle of erosion. And what are those stages? Useful stage, Yes. mature stage and old stage, sir. Okay. मैं दोबारा से बोल देता हूँ. अब ध्यान से इस डेफिनेशन को देखो. फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया is the outcome of structure, processes and stage of development. मान लो जो इस सामने जो पिक्चर है ना, अगर मुझे इसको डिफाइन करना है ना, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा?
पहले मैं देखूंगा कि इसमें कौन सा रॉक है और कैसे अरेंज्ड है। जब मैंने बोला वो रॉक कैसे अरेंज्ड है, तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है मेरे जो माउंटेन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना माउंटेन, क्योंकि सभी एक तरह के तो होंगे ही नहीं, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। और जब मैं प्रोसेसेस की बात करता हूँ, जैसे हमने टेक्टोनिक प्लेट में देखा था, मेरे फोल्ड माउंटेन्स बन रहे थे, फोर्ट माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, रेजिड्यूल माउंटेन्स, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स। और व्हाट टाइप ऑफ रॉक मीन्स, वो जो माउंटेन्स हैं वो मेरे इग्नियस रॉक से बने हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, या मेटाफेरिक रॉक से बने हैं। सो स्ट्रक्चर इज ओके, टाइप ऑफ रॉक एंड हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड। सेकेंड इज प्रोसेसेस। अब मेरे माउंटेन, ये सामने जो पिक्चर में ये माउंटेन है, ओके, अब ये ऐसे इस स्ट्रक्चर में है। अब क्या होगा? वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, उससे क्या होगा? इससे सेडिमेंट्स नीचे जाएंगे, इसकी शेप को चेंज करेंगे, करेंगे ना। अगर अर्थक्वेक आ जाता है यहाँ पे तो भी इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दी प्रोसेसेस। थर्ड इज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्रोसेसेस पे। मान लो ये सामने जो माउंटेन है, ये वाला लेफ्ट वाला माउंटेन और राइट वाला माउंटेन। जो लेफ्ट वाला माउंटेन है वो थोड़ा फ्लैट लग रहा है एज कम्पेयर टू राइट वाले से। क्यों? ये ज़्यादा पुराना होगा। एग्जाम्पल ले लो कि ये इंडिया का माउंटेन है और ये अमेरिका का माउंटेन है। अब मैं जब बोलूँगा कि दोनों का मुझे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताओ, तो मैं बोल सकता हूँ ये यूथफुल स्टेज में है और ये मेच्योर स्टेज में है। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्लोप है वो ज़्यादा एंगल्ड है, पर ये थोड़ा फ्लैट है। ये फ्लैट क्यों है? क्योंकि इरोजन ने इसको इरोड कर दिया है। जब इससे भी फ्लैट मेरा माउंटेन आ जाएगा तो वो ओल्ड स्टेज में चला जाएगा। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से हमें यह पता लगता है कि वो पर्टिकुलर एरिया कितने टाइम से इरोड हो रहा है। ऋतिक, एक्सप्लेन फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया। So physiography of an area is the outcome of structure, processes, and stage of development. व्हाट इज द In मीनिंग this, ऑफ स्ट्रक्चर? structure refers to type of rocks in the area and how they arrange. टाइप ऑफ रॉक मीन्स? Type of rock means whether the rocks are igneous or sedimentary or metamorphic, how they structured, by which process. एंड व्हाट अबाउट द प्रोसेसेस? Processes, we can say exogenic processes like weathering, erosion to shape that particular structure. एंड व्हाट अबाउट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? Stage of development are the mainly three stages. Useful stage, in which landforms are steep and rugged. In that area, rivers flow rapidly. Then we have mature stage. In that stage, slopes become gentle, rivers become meander. And स्टार्ट्स then टू we have मियंडर, रिवर्स स्टार्ट्स टू मियंडर। stars to meander. अब एक मिनट, जो मेरी यूथफुल स्टेज थी उसमें हमने बोला जो रिवर है वो फ्लो होगी रैपिडली, पर Yes, sir. मैच्योर स्टेज में हमने बोला रिवर स्टार्ट टू मियंडर। बट व्हाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियंडरिंग? Meander means to uh, gentle movement of that water. नो, लेट मी शो यू दिस पिक्चर, देन यू कैन get the idea what is the meaning of meandering of river. Compared to the whitewater streams that tumble down mountainsides, the meandering rivers of the plains may seem ये दिस इज meandering. अब मेरी जो रिवर है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चल रही, वो एक स्नेक की तरह चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
We will know. Seem tame and lazy, but mountain streams are corralled by the steep walled valleys they carve. Their courses are literally set in stone. Out on the open plains, those stony walls give way to soft soil, allowing rivers to shift their banks and set their own ever-changing courses to the sea, courses that almost never run straight. At least not for long, because all it takes to turn a straight stretch of river into a bendy one is a little disturbance. ये देखो, ये स्ट्रेट रिवर है और अब ये रिवर मियंडर कर रही है. एक डायग्राम बना लो ऐसे और उसके साथ में लिख लो मियंडरिंग ऑफ रिवर. And a lot of time. And in nature, there's plenty of both. Say, for example, that a muskrat burrows herself a den in one bank of a stream. Her tunnels make for a cozy home, but they also weaken the bank, which eventually begins to crumble and slump into the stream. Water rushes into the newly formed hollow, sweeping away loose dirt and making the hollow even hollower, which lets the water rush a little faster and sweep away a little more dirt, and so on and so on. As more of the stream's flow is diverted into the deepening hole on one bank and away from the other side of the channel, the flow there weakens and slows. And since slow-moving water can't carry the sand-sized particles that fast moving water can, the dirt drops to the bottom and builds up to make the water there even shallower and slower, and then keeps accumulating until it becomes new land on the inside bank. Meanwhile, the fast-moving water near the outside bank sweeps out of the curve with enough momentum to carry it across the channel and slam it into the other side, where it starts to carve another curve, and then another, and then another, and then another. The wider the stream, the longer it takes the slingshotting current to reach the other side, and the greater the downstream distance to the next curve. In fact, measurements of meandering streams all over the world reveal a strikingly regular pattern. The length of one S-shaped meander tends to be about 6 times the width of the channel. So little tiny meandering streams tend to look just like miniature versions of their bigger relatives. As long as nothing gets in the way of a river's meandering, its curves will continue to grow curvier and curvier until they loop around and bumble into themselves. When that happens, the river's channel follows the straighter path downhill, leaving behind a crescent-shaped remnant. अब क्या हुआ, ये कंटिन्यू मेंडर हो रही थी. अब इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी को साइड में रख दिया. इसको बोलते हैं ओक्सो लेक. हमने पढ़ा था ना, ये कौन सी स्टेज में होता है ओक्सो लेक, ऋतिक? ओल्ड स्टेज में सर. यस, नोट इट डाउन. Called an oxbow lake. Or a billabong. O un lago en herradura. Ou un bras mort. ओक्सो लेक ही याद रखना है और कुछ नहीं. We have lots of names for these lakes, since they can occur pretty much anywhere liquid flows, or used to. Which brings up an interesting question. What do the Martians call them? Okay, now it is. What is the meaning of river meandering? So स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया. यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज. यूथफुल स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें जो लैंड फॉर्म्स है वो स्टीप्ड और रगेड होंगे. रिवर रैपिडली फ्लो करेगी और वो कट करेगी डीप वैलीज को. उसके फीचर इंक्लूड होंगे वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स. और उसमें प्रोसेसेस कौन सी होंगी? उसमें प्रोसेसेस डोमिनेट करेगी वर्टिकल इरोजन. और जो मैच्योर स्टेज है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? स्लोप्स बिकम जेंटलर एंड रिवर स्टार्ट टू मियंडर एज वी जस्ट सॉ इन द वीडियो. Valleys widening, forming flood plains. Erosion and deposition are in balance. और processes में क्या होगा? Lateral erosion dominates, shaping wider valleys and smoother landscapes. और old stage में क्या होगा? इसकी characteristics क्या होगी? The landscape is flat and subdued, referred to as a peneplain. Rivers move sluggishly and form extensive meanders and form oxbow lakes and deltas. In time to come, we will also study about the deltas. Then we will understand the drainage system of the India.
डोंट वरी। और इसमें प्रोसेसेस क्या होंगी? डेपोजिशन डोमिनेट्स एज द टेरेन रीचेस नियर द बेस लेवल। And I think now it is clear to you what is the meaning of physiography and how we will explain the physiography of an area. Physiography of an area is the outcome of three things. First one is structure, second is processes, and third one is stage of development. हम इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालयाज, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेटो, फोर्थ वन इज कोस्टल एरिया, द ग्रेट डेजर्ट एंड आइलैंड। द जियो इन्वायरमेंटल डिवाइड ऑफ साउथ एशिया। Before understand the Himalayas, I have a question for you. In the previous episode, we learned about geological division. And in this episode, we will learn about physiographic division of India. But what is the difference in between geological division and physiographic division? Saurabh? What do you Yes, think? sir. What is the difference in between geological division and physiographic division? ये आपके यार दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था ना कि कल हमने जियोलॉजिकल डिवीजन पढ़ा, आज हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे हैं, पर ऐसा क्यों? सर जियोग्राफिक में हमने कहा कि नॉट फॉर्मेशन कैसे होता जियोग्राफिक, है। नॉट जियोग्राफिक, जियोलॉजिकल। जी यस, जियोलॉजिकल में हमने देखा कि फॉर्मेशन कैसे हुई है प्लेटूज की, ओके। और इसमें हम देख रहे हैं कि उस प्लेट जो फॉर्मेशन हुई है हाँ हाँ, उसे उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है यस, you're विद विद रिस्पेक्ट टू टाइम। you're thinking on the right lines. यस सर। तो जो जियोलॉजिकल डिवीजन है ना, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें we understand how that land or particular landscape formed, and in the physiographic division we understand the features and landforms of an area. और क्राइटेरिया क्या होता है? इन द जियोलॉजिकल डिवीजन रॉक टाइप्स, टेक्टोनिक हिस्ट्री एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। और फिजियोग्राफिक डिवीजन में एल्टीट्यूड, स्लोप, ड्रेनेज एंड लैंडस्केप फीचर्स। पर्पस क्या है इन दोनों के डिवीजन का? जियोलॉजिकल डिवीजन का पर्पस है अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड प्रोसेसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। As we discussed, physiographic division is about studying the physical feature of the earth surface. Example, geological division में peninsular block, stable and oldest rocks, the Himalayas, the Indo-Ganga Brahmaputra plain. और physiographic division में the northern mountains, plain, peninsular plateau, coastal, island. एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैंने शायद स्टार्टिंग का पार्ट स्किप कर दिया जब आप बता रहे थे जियोलॉजी और फिजियोग्राफी के बारे में, जो जियोलॉजिकल और फिजियोग्राफी के बारे में। जो जियोलॉजिकल डिवीजन का पर्पस है ना, द पर्पस ऑफ जियोलॉजिकल डिवीजन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड प्रोसेसेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स।
अगर आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं ना, तो सिंपल वे में है जियोलॉजिकल डिवीजन एक्सप्लेन हाउ द लैंड वाज फॉर्म्ड, एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या होता है, दे टेल अस हाउ दैट लैंड फंक्शन। अंडरस्टैंड? जियोलॉजिकल डिवीजन में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है वो लैंड कैसे बनी, और फिजियोग्राफी डिवीजन में जो लैंड बन गई है अभी वो फंक्शन कैसे कर रही है। सौरभ, अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म? Yes, sir, got it. नाउ come to this slide. Himalayas, the geo-environmental divide of the South Asia. जो हिमालयाज है वो 5 कंट्री में स्ट्रेच है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। Himalayas serve not only as a significant physical barrier but also impact the climate, drainage patterns and culture of South Asia. By acting as a geo-environmental divide, the Himalayas have shaped the region geography, ecosystem and human development. This complex mountain ranges divide South Asia into distinct zones, each with its unique environmental and cultural characteristics. Yesterday, we discussed about the culture, in which we learn culture is not only about how we speak. Culture is also about how we think, how we dress, what we eat, how we eat. It is also the part of culture, how we eat. जो हिमालयाज है वो मेरे एशिया के क्लाइमेट को डिवाइड करता है, ड्रेनेज को डिवाइड करता है, कल्चर को डिवाइड करता है। क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट है हिमालयाज का, ड्रेनेज के ऊपर भी इम्पैक्ट है, कल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट है। और हिमालयाज का रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी है। There are distinct religion found either side of the Himalayas. If we subdivide Himalayas based upon relief and geographical features, we can further subdivide Himalayas. But the question is, Himalayas are highly prone to landslide. Discuss the causes and suggest Himalayas are highly prone to landslides. Discuss the causes and suggest suitable measure of mitigation. We already learned about the concept landslide. This is a natural phenomena which occur due to the mass movement. We discussed this particular concept in the exogenic processes. So Saurabh, tell me why Himalayas are highly prone to landslides? Sir, first reason is geological factor, tectonic activity. Okay. Then if we
consider human intervention, then it's deforestation, Very good. construction activities. Okay. And if we consider natural, then heavy rainfall can also cause landslides in Himalayas. Heavy rainfall or heavy erosion? No, sorry, heavy rainfall. As like it was, there was an incident in Shimla. Yes. Yes, sir. Any other cause for landslides? No, sir. I think that's it. So note it down. Landslides are geological event in which mass of earth, rocks, debris moves down a slope. This movement can happen all of sudden or it can happen gradually. I'll repeat. Landslides are geological event in which mass of earth like rock, debris move down a slope. This movement can happen all of sudden or it can happen gradually. Causes for landslides, जैसा कि सौरभ ने बोला, seismic active region. Himalaya is a seismic activity region. Ritik, why Himalayas are seismic active region? Why we consider Himalayas as seismic active region? Because sir, in this region, convergent plate boundary interactions are there in this particular region. Because of the Indian plate boundary, Indian plate collide with Eurasian plate. Yes, sir. That is the first reason. Causes of landslides, seismic activity region है ये. दूसरा रीजन क्या हो सकता है? कंपोजिशन ऑफ रॉक. सौरभ, कंपोजिशन ऑफ रॉक लैंडस्लाइड का रीजन कैसे हो सकता है? So like उनमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे सर, ओके. दे डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स कि वो ब्रिटल होगा या फिर स्ट्रांग होगा. मेरे कितने टाइप के रॉक्स हैं? 3 टाइप सर. कौन कौन से? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फस रॉक. मेटामॉर्फिक. ओके. मेटामॉर्फिक रॉक. तो मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग रॉक होगा और सबसे वीक रॉक होगा? सर सेडिमेंट्री वीक होगा. तो जो मेरे हिमालयाज है वो कौन से रॉक से फॉर्म है? सेडिमेंट्री शायद. शायद क्यों? क्या नहीं, वहां पे कोई सेडिमेंट्री वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है? नहीं हो रहा सर. तो मतलब वोल्केनिक तो नहीं है. नो. तो कौन से ऑप्शन बचे हमारे पास? सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बचा. और मेटामॉर्फिक. यस. 2 बचे ना यार. थोड़ा ना लॉजिक से ऐसा सोचना है. एकदम से ना यस सर. हश नहीं कर देनी जब भी कोई क्वेश्चन पूछे. यस सर. दिमाग लगाओ ना. मेटामॉर्फिक इग्नियस तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है. हमने पढ़ा ना. और यस सर. सेकंड है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक रॉक कब होता है? जब वो नीचे जाता है. जब मेरे अर्थ की क्रस्ट मेंटल की तरफ जाती है तब वो रॉक शेप लेता है मेटामॉर्फिक. तो वो भी नहीं होगा. कौन सा बचा? सेडिमेंट्री रॉक. तो सेडिमेंट्री जो रॉक है दैट इज नॉट हार्ड एज इग्नियस और मेटामॉर्फिक. सो inherent rock structure of the Himalayas also cause the landslides. There is a higher probability. The first point is seismic activity region. Second is composition of rock. Now we also understand why the composition of rock is cause for landslides. Third is man-made activity. Like Saurabh told us,
deforestation and construction. Fourth is steep slopes. Ritik, what is the meaning of steep slopes? And Slopes how at higher steep? angle. Sorry? Sir, higher angle slopes, Uh, vertical slopes, we can say. then how steep slopes cause landslides? By weathering, or we can say erosion. तो वेदरिंग इरोजन तो वहां पे भी होगा जहां पे स्टीप स्लोप्स नहीं होगी. बट सर लैंडस्लाइड तो तभी होगा ना. यार स्टीप स्लोप में तो वेदरिंग होगी. ओके, अगर जो मेरा फ्लैटेंड एरिया वेदरिंग तो वहां पे भी होगी, तो वहां पे लैंडस्लाइड नहीं होगा क्या? वहां पे भी लैंडस्लाइड होगा. इट मीन्स दैट इज नॉट द आंसर. ग्रेविटी प्ले एंड रोल हियर. ज्यादा इम्पैक्ट स्टीप स्लोप पे ग्रेविटी इम्पैक्ट करेगी या स्टेबल पे? स्टीप स्लोप पे. यू अंडरस्टैंड? यस सर. एंड द फिफ्थ वन इज क्लाइमेट चेंज. So Saurabh, how climate change causes landslides? सर जो आइस है सर, ग्लेशियर जो प्रेजेंट है हिमालयाज में, Yes, वो मेल्ट होते हैं सर गर्मी की वजह से. yes, very good. And that weather can cause landslides. यस सर. So we have 5 reasons for landslide in the Himalayas region. Ritik, what are those 5 reasons? Sir, five regions are, first one is Himalaya is a seismic active region. Then there are composition of rocks. So sedimentary rocks are present in Himalayas regions. Then we And have, and sedimentary rocks are weak in nature as yes, compared sir. to other rocks. And third Third one one, is man-made activities like deforestation and constructions. एक Fourth one मिनट is, एक मिनट एक मिनट. How deforestation cause landslide? sir, because the roots of trees uh, hold the soil, Good. that can prevent soil erosion by rainfall or other climate change. Yes. And fourth point is Steep slope, here gravity factors plays the role. Ritik, Then climate change, melting of what is glaciers. the deglaciation. Okay. So now the question is, what are the mitigation efforts we can take? What are the mitigation steps we can take? First of all, you need to understand what is the meaning of mitigation. Saurabh, what is the meaning of mitigation? How we can improve it, or how we can stop it? Good. We can say that mitigation refers to the action or strategies taken to reduce or minimize the severity, impact, or risk of a problem or a hazard. In simple terms, we can say effort to reduce or prevent. I'll repeat, efforts to reduce or prevent a hazard. So, how we can mitigate landslides? Saurav, any idea how we can mitigate the landslides in Himalayan region? यस सर. So, tell us. अगर सर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, तो उसकी जगह हम प्लांट्स लगा सकते हैं, और फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, काटना कम कर सकते हैं प्लांट्स को. Good.
फर्स्ट फैक्टर। यस सर। सेकंड होगा कि लैंड यूज प्लानिंग करेंगे कि कितना लैंड कैसे यूज करना है। वेरी गुड। सर थर्ड तो यही हो सकता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हाँ, दैट इज द ताकि जो जो लोकल लोकल रहे उन्हें पता चले कि अवेयर रहे कि हम हमारे लिए नुकसान क्या है अगर हम ऐसे करेंगे तो। ओके। नाउ ऋतिक, यस सर। टेल अस द फोर्थ पॉइंट। सौरभ told us the 3 point: land use planning, vegetation and soil conservation, and third one is awareness. What would be the fourth or fifth or sixth point, or any other Sir, point? pre-planning systems like early warning systems. Early warning system, but how we can assess the landslide? Okay. We can assess the earthquake, we can assess tsunami, but how we can assess the landslide? I don't know, I don't have any idea. Okay, next point. Um, vegetable and food storage. How vegetable and food storage help us to reduce the impact of? Sir, after landslide, roads may be closed for some time. So, We are not talking about after landslide. okay. ओके, नो वरी। तो हमें ना इनोवेटिव बनना पड़ेगा। अभी आपको मैं 2 वीडियोस दिखाऊंगा। दैट इज नॉट रिलेटेड टू द लैंडस्लाइड, दैट इज रिलेटेड टू द फ्लड प्रोन, फ्लडिंग। पर अब हमें उसी पर्सपेक्टिव से सोचना है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वॉच दिस 2 वीडियोस, बोथ आर related to different countries. First one are related to the Japan. This is Japan's underground Parthenon, a cavernous complex for protecting Tokyo and surrounding areas from catastrophic flooding. It was built in 2006 at a cost of 230 billion yen. This immense structure funnels away and redirects excess water from storm and typhoons to the Kasukabe flood tank. This is the largest facility of its kind in the world. It swings into action around 7 times a year. This facility is deep enough in some parts to even hold a space shuttle or the Statue of Liberty. The main reservoir is a bare concrete tank in the length of 2 football fields. We can say underground tunnels. ये एक तरह की अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दिस इज अ मैब्रिक माइंडसेट। अलग सोचना है, कुछ प्रॉब्लम्स को अलग नज़रिए से देखना है और उसका सोल्यूशन निकालना है। आई विल शो यू अनदर वीडियो। Floods are not enemies. We can make friends with flood. We can make friends with water. Look what this person saying. Flood are not enemy. Flood is our friend. कैसे इसने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और सिटी को स्पॉन सिटी में कन्वर्ट कर दिया। What we should do is just revive ancient wisdom.
what we have done is totally wrong. We think we can use concrete to channelize the river. We think we can use dike to protect the city from being flooded, and we drain away all the water. We're filling all the lakes to build the city, and that will cause flood and drought. So you can see every year the city being flooded. In 2012, 79 people got drowned in Beijing. It's simply because we destroyed the natural system. We didn't give water enough space. We have to understand that those great infrastructures are actually killers of the natural system, which we have to depend on for our sustainable future. Sometimes we have better solutions, the nature-based solutions, which can provide the same or better services. The idea of sponge city is allow the natural flow to come back. Use a wetland system, use a sponge system to retain the water, that keeps water, instead of drain away. But then people ask, you have a beautiful idea, you have create a harmonious relationship between nature and man, between the water and the city. But how is that possible? We actually remove the flood wall. We retreat the dikes and create eco-friendly terraces so that the land and water will meet depending on the different levels of flood. So during the monsoon season, it's for the flood. During the dry season, it becomes a park for everyday use. Instead of hard, gray concrete bank, now we bring back the lives, the clean water, the lush vegetation, the birds and the fish come back. And people just love it. So it's become a park in the center of the city. I want to show people that green solution works. From that one city 20 years ago, now we have 250 Chinese cities having us doing projects. We have to think along these lines to solve any problem. So in mitigation, first point we have vegetation and soil conservation. Second is land use planning and zoning. Third is policy and governance. Fourth one is drainage management. Fourth one is sustainable tourism. And sixth one is public awareness. This is about mitigation. But what we can do in adaptation? Mitigation means before the disaster, and adaptation means after the disaster. What we can do? Saurabh, any idea of any kind? No, sir. Ritik? So rescue task forces. Okay. Can we say that resettlement?
रीसेटल करना पड़ेगा हम लोगों को वहाँ से। यस सर। अब वहाँ पे लोग एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे थे, एक पर्टिकुलर काम के साथ जुड़े थे, अब उनके पास काम नहीं रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट इज रिहेबिलिटेशन, सेकंड इज इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, and we can say insurance. Saurav, can we say insurance? हाँ सर। अभी LIC क्या करता है? सर अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो पीछे जो उनके नॉमिनी है उनको पे करते हैं। तो can we adapt or adopt this kind of things on that area? यस सर। Those who are suffered from Sir. that particular disaster, can we, because it's about the policies, we can implement this kind of policy on that particular area. Okay? यस सर। जो हमारा फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, there are large scale regional variation within the Himalayas on the basis of relief, alignment of ranges and other geomorphological features. The Himalayas can be divided into following subdivision. पहले हमने इंडिया को फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया जो कि 6 हैं। अब हम हिमालयाज को भी फर्दर सब डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, सेकंड इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, थर्ड इज दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, फोर्थ इज अरुणाचल हिमालयाज, एंड फिफ्थ वन इज ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. नोट इट डाउन. You have 1 minute to note it down. Please note it down. The first one is Kashmir और Northwestern Himalayas. मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में पढ़ने से पहले अब ये पर्टिकुलर डायग्राम देखो और ड्रॉ करो ताकि यू विल अंडरस्टैंड वेयर दिस हिमालयज आर सिचुएटेड. और जो साइड में ये इंपॉर्टेंट पीक्स है इनको भी लिख लो. नंगा पर्वत, काराकोरम, K2 मीन्स काराकोरम, माउंट कैलाश, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचावरवा. और इसकी लोकेशन भी है मेंशन की हुई. जो ये ट्रायंगल बनाए हैं दीज आर द लोकेशन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको बना लेना अच्छे से. I will also show you a video so that you can visualize it clearly what is the division of Himalayas and where it is situated. दोस्तों इंडिया एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया वाली पेनिनसुलर कंट्री है जो नॉर्थ में हिमालयाज, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है. इंडिया का एक्सटेंशन नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, वहीं ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में कच्छ तक इसका एक्सटेंशन 2933 किलोमीटर है. इंडिया के इस लॉन्ग लैंडफॉर्म में हमें माउंटेन से लेकर प्लेटू और प्लेन से लेकर डेजर्ट्स जैसे बहुत से डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं.
और आज माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया सीरीज की सेकंड वीडियो में हम इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को देखा था। इस वीडियो को आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस को जानने से पहले हमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस के क्लासिफिकेशन को जानना होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मौजूद ज्यादातर माउंटेन रेंजेस इन्हीं का पार्ट है। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग हिमालयास की फॉर्मेशन को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है: ट्रांस हिमालयास या तिब्बतन हिमालयास, द ग्रेटर या ग्रेट हिमालयास। फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालयास, सेकंड इज ग्रेटर हिमालयास, मिडिल या लेसर हिमालयास, आउटर मिडिल या लेसर हिमालयास या शिवालिक, और आउटर को हम शिवालिक भी बोलते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयास। पूर्वांचल में आने वाली माउंटेन रेंजेस को हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगेन उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बात करें ट्रांस हिमालयास की, तो हिमालयास के सबसे टॉप मोस्ट रीजन को ट्रांस हिमालयास कहा जाता है, जो ग्रेट हिमालयन रेंज के ठीक ऊपर लोकेटेड है। इस हिमालयन रेंज का मोस्ट ऑफ द पार्ट तिब्बत में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज सी लेवल से 3000 मीटर के एलिवेशन पर मौजूद है। इस रेंज का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर करीब 1000 किलोमीटर तक। इस लाइन को दोबारा से सुनो। हिमालय भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज सी लेवल से 3000 मीटर के एलिवेशन पर मौजूद है। इस रेंज का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर करीब 1000। ईस्ट से वेस्ट की ओर है इसका एलिवेशन। नोट इट डाउन। जो ट्रांस हिमालयास का एलिवेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। 1000 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पर इसकी एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर और सेंट्रल पार्ट में 225 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश जैसी माउंटेन रेंजेस ट्रांस हिमालयास का पार्ट। नोट इट डाउन। K2, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयास। ग्रेट हिमालयास। ट्रांस हिमालयास के बाद ग्रेट हिमालयास आते हैं, जिसे हायर हिमालयास या हिमाद्री भी कहा जाता है। इस रेंज की वी कैन आल्सो कॉल इट एज ए हिमाद्री। यूपीएससी के प्रीलिम्स में वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो हायर हिमालयास भी यूज कर सकते हैं, ग्रेट हिमालयास भी यूज कर सकते हैं और हिमाद्री भी यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। की टोटल लेंथ करीब 1400 माइल्स यानी 2300 किलोमीटर है। वहीं इसका एवरेज एलिवेशन मोर देन 20,000 फीट यानी 6100 मीटर है। ग्रेट हिमालयास की खास बात यह है कि यहाँ वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स पाई जाती हैं, जिनकी हाइट 8000 मीटर के आसपास है, जिनमें नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पीक्स शामिल हैं। वहीं कई ग्लेशियर्स भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें गंगोत्री ग्लेशियर और संतोपंत ग्लेशियर काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो ऋतिक, जो मेरे काराकोरम रेंज है वो कौन से हिमालयाज में पाई जाती है? ट्रांस हिमालयाज में। और माउंट एवरेस्ट? ग्रेटर हिमालयाज। ओके। इन सब के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट पासेस भी ग्रेटर हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जम्मू और कश्मीर में और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और शिप्की, उत्तराखंड में थांगाला, लिपुलेख, नीति पास और सिक्किम में नाथुला और जिले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास? सौरभ, इसने अभी बोला कि जोजिला पास, लिपुले पास, ग्रेट जेलिपाला पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास? सर इसका मीनिंग होगा कि दो पहाड़ों के बीच गैप बना होगा। यस, ए नैरो पाथवे और गैप बिटवीन द माउंटेन्स और हिल्स।
that provide a natural route for crossing a mountain range. Okay? लिपला, लेसर हिमालयाज। दोस्तों सेंट्रल एशिया में वास्ट हिमालयन माउंटेन सिस्टम का मिडिल सेक्शन लेसर हिमालयाज कहलाता है। इसे इनर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज भी कहा जाता है। लेसर हिमालयाज इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न लिमिट में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में करीब 1550 माइल्स यानी 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जबकि इसकी एवरेज एलिवेशन 12,000 से 15,000 फीट यानी 3700 से 4500 मीटर है। लेसर हिमालयाज का सदर्न स्लोप काफी स्टीप है जो इसे सॉइल इरोजन से बचाता है, वहीं इसका नॉर्दर्न स्लोप काफी जेंटल है जो मेनली फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। लेसर हिमालयाज में कई सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत लेक। ये सभी जो नेम्स है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी स्टेट में कौन कौन सी है, तो इसको नोट डाउन कर लेना या बाद में सर्च कर लेना गूगल पे, ये इम्पोर्टेंट है। शिवालिक रेंज। दोस्तों हिमालयाज के सदर्न मोस्ट रेंज को शिवालिक या आउटर हिमालयाज कहते हैं, जो ग्रेट प्लेन और लेसर हिमालयाज के बीच मौजूद हैं। इन रेंजेस का ऑल्टीट्यूड 600 से 1500 मीटर तक वेरी करता है। वहीं ये वेस्ट से नॉर्थ वेस्टवार्ड तक पोटवार प्लेटू से ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंड करते हैं। शिवालिक रेंजेस को डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जम्मू में जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में दुधवा रेंज, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिशमी। वहीं इस रेंज को नेपाल में चुरिया घाट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब एक एक करके नॉर्थ इंडिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। काराकोरम रेंजेस। दोस्तों हिमालयाज में सबसे अपर मोस्ट रेंज को काराकोरम रेंज कहा जाता है, जो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। दरअसल काराकोरम रेंज सेंट्रल एशिया की एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो वेस्ट में हिंदू कुश, नॉर्थ वेस्ट में पामीर, नॉर्थ ईस्ट में कुल्लुन माउंटेन और साउथ ईस्ट में हिमालयाज का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये रेंज सेंट्रल एशिया की एक ऐसी माउंटेन रेंज है। दोबारा से देखो, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, जो वेस्ट में हिंदू कुश, नॉर्थ वेस्ट में काराकोरम रेंज के वेस्ट में है हिंदू कुश। इसको प्लॉट कर लो। पामीर, नॉर्थ ईस्ट में कुल्लुन माउंटेन और साउथ ईस्ट में हिमालयाज का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये पामीर, कुल्लन एंड हिंदू कुश रेंजेस। रेंज पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर फैले कश्मीर रीजन में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। काराकोरम रेंज में ही एक ऋतिक टेल मी, जो काराकोरम रेंजेस है वो कितनी कंट्रीज में सिचुएटेड है? इसका बॉर्डर कितनी कंट्री के साथ लगता है? सर काराकोरम रेंजेस का तो बॉर्डर एक चाइना और काराकोरम रेंज मेरे कितने देशों में फैला हुआ है? इंडिया और चाइना में ही है सर, स्पेसिफिकली तो पाकिस्तान में भी है यार, अभी तो उसने बोला। सुनो, और साउथ ईस्ट में हिमालयाज का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये रेंज पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर फैले कश्मीर रीजन में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पाकिस्तान, चाइना और इंडिया रेंज है। काराकोरम रेंज में ही एक इंपॉर्टेंट पीक है माउंट गॉर्डन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 की हाइट 8611 मीटर यानी 28,251 फीट है। इसके अलावा K3, K4 और K5 पीक्स भी काराकोरम रेंज में ही लोकेटेड है, जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है। वहीं कई मेजर ग्लेशियर भी इस रेंज में मौजूद हैं, जो पोल से बाहर मौजूद सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स में से एक है। इनमें से एक है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। नोट इट डाउन, सियाचिन ग्लेशियर। What is the significance of Siachen Glacier for India? Saurabh?
What is the significance of Siachen Glacier for India? Right now, I don't know what that, sir. Ritik? Sir, natural barrier against China. Okay. In the military viewpoint. मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ. ये एक्साई चीन है. ऑल्दो ये इंडिया का पार्ट है, बट इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना, बट इज़ क्लेम्ड बाय इंडिया, और दैट इज़ गिलगिट बाल्टिस्तान. गिलगिट बाल्टिस्तान. और ये सियाचिन ग्लेशियर है. पोल और साउथ पोल के बाद में इंडिया के सियाचिन ग्लेशियर को वर्ल्ड का तीसरा पोल बोलते हैं. इंडिया के एकदम टॉप मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है. पाकिस्तान, चाइना और इसको ड्रॉ करो. आपके पास 1 मिनट है. ये गिलगिट बाल्टिस्तान, सियाचिन, अक्साई चीन, लद्दाख. इसको ड्रॉ करो. इंडिया के ट्राई बॉर्डर्स का Siachen Glacier is controlled by India but claimed by Pakistan. And Aksai Chin controlled by China since 1962 but claimed by India. और एक सक्षम वैली भी है. That is area ceded by Pakistan to China but claimed by India. जो जम्मू कश्मीर है ना, इसका 45% इंडिया के पास है, 35% पाकिस्तान के पास है और 20% चाइना के पास है. और वो कौन सा रीजन है? अक्साई चीन एंड सक्षम वैली. जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये येलो वाला, ऋतिक? यस सर. जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ये येलो पार्ट है ना, ये दैट इज सक्षम वैली. ये सियाचिन ग्लेशियर. और जो मेरी नुब्रा वैली है ना, वो नुब्रा वैली है मेरी इधर. इस वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको डिटेल में. मीटिंग पॉइंट है. वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इसे कहते हैं. ठंड के कारण इंडियन मिलिट्री के लगभग 1000 सोल्जर्स की यहाँ नेचुरल कॉजेस के कारण जान जा चुकी है. उसके बावजूद इंडिया इसे प्रोटेक्ट करती आ रही है, आर्मी को तैनात करती आ रही है और करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं इसकी सिक्योरिटी पर. ऐसा क्या खास है इस ग्लेशियर में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या है ये ग्लेशियर, आज की वीडियो में जानेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक समझ लीजिए जो अपने ही वेट के कारण काफी डेंस हो चुका है और अपने ही वेट को संभाल नहीं पाने के कारण बह रहा है. यानी कि ऐसा आइस ब्लॉक जो जमीन पर मूव कर रहा है, खिसक रहा है, उसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं. मैक्सिमम ग्लेशियर्स आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल में ही मिलेंगे, मगर इंडिया में भी कई सारे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक है सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर आता है. ऑफिशियली इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर का मीटिंग पॉइंट है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सियाचिन ग्लेशियर एक वैली टाइप का ग्लेशियर है, यानी कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो वैली बनती है वहां पर आइस इकट्ठी हो गई है बहुत सारी और अपने ही वेट के कारण एक नदी का फॉर्म ले लिया जो बह नहीं रही है, जिसमें पानी नहीं है,
सिर्फ आइस है। सियाचिन ग्लेशियर को आप इमेजिन कर सकते हैं एक नदी के रूप में जो 76 किलोमीटर लंबी है मगर पूरी तरह से जमी हुई है। इस 76 किलोमीटर ग्लेशियर के खत्म होने के बाद में नुब्रा रिवर का ओरिजिनेशन होता है जो सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ को पिघलने से ही बनती। Note it down. This is a important Nubra River. Nubra Valley and Nubra River is very important from India standpoint. अब सियाचिन ग्लेशियर सिर्फ ये 76 किलोमीटर लंबी नदी ही नहीं है, इसके कई सारे ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स हैं जो पहाड़ों के वैली के बीच में से निकल कर आते हैं और सियाचिन ग्लेशियर में आकर मिलते हैं। ये बर्फ धीरे धीरे खिसकती रहती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो काराकोरम रेंजेस हैं वहां से अगर हमें इंडिया में एंटर करना है तो सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही अच्छा पाथ है, क्योंकि ये एक दोबारा से सुनो इस पर्टिकुलर लाइन को। अगर हमें इंडिया में एंटर करना है तो सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही अच्छा पाथ है। अगर यहाँ से हमें इंडिया में एंटर करना है तो सियाचिन ग्लेशियर इज वन ऑफ द पास which can provide it directly or easy access to India. That's why this point is very crucial from India's security point of view. क्योंकि ये एक सॉलिड प्लेन रास्ता प्रोवाइड करता है माउंटेन रेंजेस के बीच में, जिसे एक्सेस करना आसान हो जाता है कंपैरेबली। अब बात करते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल क्यों कहा जाता है। दरअसल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद में सबसे बड़ा एक्यूमुलेटेड फ्रेश वाटर का सोर्स सियाचिन ग्लेशियर ही है, इसलिए इसे थर्ड पोल भी कहते हैं। इस ग्लेशियर में इतना फ्रेश वाटर रिसोर्स भी है सियाचिन ग्लेशियर, फ्रेश वाटर है जो अर्थ में और कहीं पर भी नहीं मिलेगा सिवाय नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है और पहले ये किसी जमाने में 145 किलोमीटर का हुआ करता था। करंटली ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है तजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर के बाद में। इस ग्लेशियर के बारे में पहली नोन रिपोर्ट 1848 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर ने लिखी थी। 1909 में इसे डिमार्केट भी किया गया था, मगर 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल को ड्रॉ किया गया, तब भी सियाचिन ग्लेशियर के कुछ पार्ट को छोड़ दिया गया था अनडिमार्केटेड, क्योंकि ये एकदम ही नॉन एक्सेसिबल टेरिटरी थी। और इतना ही नहीं, 1965 और 1971 की वॉर्स के बाद में भी जो डिमार्केशन हुआ उसमें भी सियाचिन ग्लेशियर की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री को अनडिमार्केटेड छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये नॉन एक्सेसिबल थी और यूजलेस कही जाती थी। सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ लेट 1970s में, जिसमें इंडियन आर्मी के एक माउंटेनियर नरेंद्र कुमार, जिन्हें बुल कहा जाता था, उन्होंने कुछ यूएस ड्रॉन मैप्स में ये देखा कि सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया गया। जब इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने तो ये पता चला कि पाकिस्तान सीक्रेटली कुछ फॉरेन माउंटेनियर्स को सियाचिन ग्लेशियर्स के थ्रू काराकोरम रेंजेस के माउंटेन्स पर चढ़ाई करने का परमिट दे रहा था और उसे अपनी टेरिटरी बताकर अपने मैप में दिखा रहा था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत ने नोट इट डाउन, ऑपरेशन मेघदूत पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन को एंटिसिपेट करके पाकिस्तान आर्मी के कब्जा करने से एक हफ्ते पहले इंडियन ट्रूप्स को सियाचिन ग्लेशियर पर स्थापित कर दिया और पाकिस्तान आर्मी का एंट्री पॉइंट बंद कर दिया। अगर ये ऑपरेशन मेघदूत नहीं किया जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी को इंडिया के अंदर एक्सेस करने का एक बहुत ही सीधा और बहुत ही आसान रास्ता मिल जाता, जिसे वो कैप्चर करके रखते और उनके ट्रूप्स को सियाचिन के थ्रू इंडिया में मोबिलाइज करना काफी ईजी हो जाता। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने यह कहा था कि इंडिया किसी भी हालत में सियाचिन ग्लेशियर को वैकेट करने के मूड में नहीं है जब तक एक्चुअल डिमार्केशन नहीं हो जाता टेरिटरी। ऐसा क्यों? क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इन्फिल्ट्रेट करना आसान है यहाँ से, बल्कि चाइना भी यहाँ से आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकता है इंडिया में। और आप देख ही रहे हैं कि चाइना कितना एग्रेसिवली, जहां नहीं करना चाहिए वहां भी घुसता चला जा रहा है। सियाचिन ग्लेशियर का प्रोटेक्शन इंडिया के लिए भारी तो बहुत पड़ रहा है। लगभग 900 सोल्जर्स की डेथ सियाचिन ग्लेशियर पर हो गई है नेचुरल कॉजेस के कारण, और लगभग 200 सोल्जर्स शहीद हुए हैं। Now we understand the division of Himalayas. Ritik, what are the division of Himalayas? सर कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस और हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, अरुणाचल हिमालयस, और क्या था, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इसमें ना जो कश्मीर और नॉर्दर्न हिमालयाज है ना, इसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और
पीर पंजाल रेंजेस है जो इम्पोर्टेंट है। आई रिपीट, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजाल। ये है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजाल। इसको ड्रॉ कर लो। Between the Great Himalayas and Pir Panjal ranges, between the Himalaya and Pir Panjal ranges, ये ग्रेट हिमालय है और ये पीर पंजाल है। लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर। जो मेरा कश्मीर है वो इसके बीच में है, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में। और जो वर्ल्ड फेमस डल लेक है वो भी इधर ही है। हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा। इसमें कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में मेरे बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टोरो, BALTORO, और सियाचिन ग्लेशियर। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है। जोजिला पास, बनिहाल ऑन द पीर पंजाल। जो जोजिला है वो है ग्रेट हिमालयाज पे, बनिहाल ऑन द पीर पंजाल, फोटुला ऑन द जस्कर, फोटुला PHOTULA, फोटुला ऑन जस्कर, एंड खारदुंगला KHARDUNG, खारदुंगला LA ला ऑन द लद्दाख रेंज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्रेट हिमालयज में है जोजिला, पीर पंजाल में है बनिहाल, जस्कर पे है फोटुला, और लद्दाख रेंज में है खारदुंगला। सौरभ, यस सर। बनिहाल कौन सी रेंज पे है, माउंटेन रेंज पे है बनिहाल पास? ऋतिक, यस सर। ऋतिक, पीर पंजाल सर। और खारदुंगला? लद्दाख। यस। और इसमें सर फोर्टुला कौन सा था? ये फोर्टुला क्या है ये? वो जस्कर के है, जस्कर। फोर्टुला पास ऑन दी जस्कर रेंज। जैसे मैंने देखे ग्लेशियर 2 इंपॉर्टेंट थे मेरे, 4 इंपॉर्टेंट पासेस थे। अब फ्रेश वाटर लेक, ये लिखा है ना इधर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया सच एस बार्टुलो और सियाचिन आर फाउंड इन दिस रीजन। डल लेक भी है इसमें। अब 2 फ्रेश वाटर लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, फ्रेश वाटर लेक्स, डल लेक और बुलार लेक। डल और बुलार, WULAR। और साल्ट वाटर लेक है इसमें पेंगोंग टसो एंड टसो मोरिरी। फ्रेश वाटर लेक है इसमें डल और बुलार। और सॉल्ट वाटर लेक है पेंगोंग, PANGONG, पेंगोंग टसो TSO, एंड टसो मोरिरी TSOMORIRI। पेंगोंग टसो एंड टसो मोरिरी, ये मेरी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। ऋतिक,
यस सर। अभी मैंने बोला ये सॉल्ट वाटर लेक्स है, बट हाउ सॉल्ट वाटर फाउंड ऑन हिमालयाज? सॉल्ट वाटर तो ओशन में होता है, हिमालयाज में सॉल्ट वाटर लेक कैसे आ गई? क्योंकि सर हिमालयस के फॉर्मेशन के पहले यहाँ टेथिस सी था। वेरी गुड सौरभ, एनी अदर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्ट वाटर लेक्स अदर देन टेथिस सी? नो सर, वो रिजर्व्ड ही होंगे पहले से सॉल्ट। एक रीजन नहीं है यहाँ पे, 4 रीजन है। यस सर। फर्स्ट तो हो गया एंशियंट सी, जो अभी ऋतिक ने बताया टेथिस था, जब मेरी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हुई तो उसके कुछ डिपॉजिट यहाँ पे आ गए। दूसरा है नो ड्रेनेज आउटलेट, जो ये लेक है ना उसका कोई आउटलेट नहीं है, उससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, नीचे क्या रह जा रहा है, नमक। मैनी हाई एल्टीट्यूड लेक्स लाइक पेंगोंग एंड others, they don't have outflow. Water from rivers and streams flow into these lakes, and evaporation over time concentrate the salts, making the water saline. First region है ancient seas, second no dredging outlet, third है mineral rich rocks. The surrounding rocks in the Himalayas contain soluble minerals like sodium and magnesium. As water flow through these rocks, it dissolves the salt, contributing to the salinity of the lakes. That is third point. And fourth point is evaporation. At high altitude, despite cooler temperature, the low air pressure leads to significant evaporation, leaving behind concentrated salts in the lake beds. So, Saurabh, what are the reasons behind the saltwater lake found on the Himalayas? सर फर्स्ट वन इज ड्यू टू द नो। सर पहले तो गैप नहीं था निकालने के लिए उन्हें लेक के यहाँ से। No drainage outlets. Note it down. No drainage outlets. नो ड्रेनेज आउटलेट। Okay. ये पहला पॉइंट नहीं है, पहला पॉइंट है एंशियंट सी, टेथिस सी। ऋतिक ने बोला ना टेथिस सी था पहले। यस यस सर है टेथिस सी। दूसरा है नो ड्रेनेज आउटलेट, थर्ड सर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से पहले एक पॉइंट है, ऋतिक कौन सा पॉइंट है वो? सर मिनरल रिच रॉक्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। उससे क्या होगा? उससे सर वो उस लेक में अगर मिनरल्स हैं लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम वो उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, उसकी वजह से ये वाटर सॉल्युबल हो मिनरल्स जाएगा। सोडियम और मैग्नीशियम कहाँ से आए? सोडियम एंड मैग्नीशियम ये तो सर रॉक्स में ही प्रेजेंट है ना। तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ, द सराउंडिंग रॉक्स इन द हिमालयाज, लेक के अंदर कोई रॉक्स नहीं है, द सराउंडिंग रॉक्स। अब जो मेरी लेक है उसके सराउंडिंग में पहाड़ होंगे, वो पहाड़ में मिनरल्स है, बारिश हुई, वहाँ से पानी गुजरा, पानी ने क्या किया, मिनरल्स को एब्जॉर्व किया, सोडियम और मैग्नीशियम को अपने साथ लेके वो कहाँ लेके चले गए, लेक के अंदर। अंडरस्टैंड? एंड फोर्थ पॉइंट इज इवेपोरेशन। द कश्मीर हिमालयाज आर आल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, which are useful for the cultivation of जैफरन, a local variety of saffron. हम सबको पता है कि सैफरन कितना कॉस्टली है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेवास? एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेवा? नो सौरभ, सर। एनी आइडिया? नो सर। ऋतिक? नो सर। No worries. We will understand
about the Kareva, ये important है through this video. We will discuss what are Karevas. First of all, let's see why is it in the news. Kashmir's highly fertile alluvial soil deposits called Karevas are being destroyed in the name of development, much to the peril of local people. Now let's understand what are Karevas. The term Kareva is derived from the Kashmiri dialect, which means elevated tableland. This term was first used by Godwin Austen 1859 and later by Lydekker 1878 for an unconsolidated to semi-consolidated sand-clay conglomerate sequence. These plateaus are 13,000 to 18,000 meter thick deposits of alluvial soil and sediments like sandstone and mudstone. This makes them ideal for cultivation of saffron, almonds, apples, and several other cash crops. Now let's discuss about significance of Karevas. Kashmir's saffron, which received a geographical indication that is G. This is your homework. You need to find out what is the meaning of geographical indication tag, GI tag. GI tag in 2020 for its longer and thicker stigmas, deep red color, high aroma and bitter flavor is grown on these Karevas. Today, the Kareva sediments not only hold fossils and remnants of many human civilizations and habitations, but are also the most fertile spots in the valley. Now let's understand about the formation of Karevas. The fertility of these patches is believed to be the result of their long history of formation. It formed during the Pleistocene period, that is 2.6 million years to 11,700 years ago. This is not important for us, how the Karevas were formed. So, now we understand what are Karevas. These are Kashmir highly fertile alluvial soil deposit that are being destroyed in the name of development, much to the peril of local people. Karevas are very important because more than 20% of the economic activity are linked to the cultivation of saffron. वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर वैली के लोगों के लिए. So here's the case study. The impact of construction activity on Kareva deposit in the Kashmir Valley. In the Kashmir Valley, rapid urbanization and infrastructure development, including the construction of road, residential complexes, and commercial building, have led to the large-scale excavation and destruction of Kareva deposits. These deposits, which are critical to the region agriculture, environment, and cultural heritage, are being heavily altered for construction purposes. The excavation of Karevas traces is affecting soil quality, increasing the risk of soil erosion, and causing environmental degradation. Additionally, the destruction of these ancient deposits threatens traditional agriculture practices and the region's historical identity. The local administration faces pressure from developers and political groups to facilitate these construction activities, as they are seen as a way to boost economic growth and create jobs. However, the long-term consequences of disrupting these
vital Kareva deposit could lead to the soil degradation, environmental imbalance, and loss of valuable agricultural land. So here's the question for you. As an ICE officer, how would you approach this situation? Consider the environmental, cultural, and socio-economic implication and propose a balanced solution that ensure sustainable development while protecting the region natural resources and heritage. So Saurabh, what will you do in this situation? You know the importance of Kareva. These are rich in alluvial soil, which is very essential for the cultivation of saffron. But in the name of economic activity or development activity, they are destroying the Karevas. अगर आप उस जगह पे पोस्टेड होंगे तो आप क्या करोगे सौरभ? Yes, sir. What will you do? Consider yourself as an IS officer and think accordingly. हमने एक ऐसे ही केस स्टडी मिनरल्स के एपिसोड में की थी. Yes, sir. अब सोचो वहां पे हमने क्या किया था और यहाँ पे क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर्स को समझना है, उनकी ग्रीवियंस को. यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? Sir, local people and companies. कंस्ट्रक्शन कंपनी और लोकल पीपल. तो आप Yes, sir. एवेल्युएट करोगे सबसे पहले चीज़ों को, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, पहले लोकल पीपल के ग्रीवियंस समझोगे, उनकी दिक्कत क्या है, उनका कंसर्न क्या है कि जो ये करेवाज है वो हमें फ्लड से बचाने में मदद करता है, ये फर्टाइल लैंड है, पर कंपनी के क्या ग्रीवियंस है, उनको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, उनको मिट्टी चाहिए रोड बनाने के लिए. तो इस केस में क्या करोगे आप? सर, कोई दूसरा सोर्स हो सकता है, वो प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर हो सके तो. जैसे सैन के लिए. जैसे जैसे सर, अगर कोई लेस फर्टाइल लैंड हो आसपास, तो वो हम मुआयना करवा के वहां से अथॉरिटी से बात करके इन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं. यस, दैट वी कैन डू. और अगर कोई अल्टरनेटिव सैंड के लिए अल्टरनेटिव होगा अगर कोई, तो वो ढूंढ सकते हैं. हम रिसाइकल मटेरियल यूज कर सकते हैं. हाँ, यूज कर सकते हैं रिसाइकल मटेरियल. और क्या कर सकते हैं ऋतिक? और क्या कर सकते हैं? आप होते अगर इस सिचुएशन में तो आप क्या करते ऋतिक? सर पहले तो ये हो गया कि स्टेक होल्डर्स को समझ के उनका जो नीड है उनको पूरा करें. उसके बाद अब देखो, अभी आपने बोला स्टेक होल्डर की नीड को पूरा करना है, तो यस सर. जो वहाँ के लोकल पीपल है उनकी नीड है कि करेवास को डिस्ट्रॉय मत करो, यस और कंपनी की नीड है कि हमें करना है. तो दोनों की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? सर, कंपनी की नीड है कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए करेवास यूज करने हैं, तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम अल्टरनेट कुछ ढूंढ सकते हैं, जैसे सैंड रिसोर्स या ब्रिक रिसोर्स. पर वो इकोनॉमिकल फिजिबल भी होना चाहिए ना. जैसे अब मान लो एक टेंडर हुआ, उस टेंडर में मान लो कि मुझे 10 किलोमीटर का रोड बनाना है, वो 2 करोड़ का है. वो 2 करोड़ का मुझे रोड बनाना है और विद इन 1 किलोमीटर के अंदर अंदर से मुझे मटेरियल खरीदना है, या तभी मुझे कुछ फ़ायदा होगा उस
टेंडर में, अगर वो काफ़ी दूर होगी पर्टिकुलर लैंड जो इतनी फर्टाइल नहीं है, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर होगी, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो तो लॉस हो गया। तो उस केस में क्या करोगे आप? पहले आपको इवेल्युएट ये भी करना पड़ेगा ना कि वहां पे कंस्ट्रक्शन जरूरी है या नहीं है। यस सर। कंस्ट्रक्शन जरूरी है कश्मीर वैली में या नहीं? कश्मीर वैली में कंस्ट्रक्शन तो जरूरी नहीं है, वैसे वो तो टूरिस्ट स्पॉट ही है एक टाइप का। तो मतलब अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जरूरी नहीं है, वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है, कल को पाकिस्तान वाले आ जाएंगे या चाइना वाले आ जाएंगे, तो इंडिया वाले कैसे जाएंगे उधर? यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो आप कि वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जरूरी नहीं है? कश्मीर वैली में, हिमालयज में सबसे पहले आपके जो दिमाग के सामने जो फ्रेमवर्क आना चाहिए वो आना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ऋतिक? आना चाहिए सर। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करना है आपको। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने इसमें एक फैक्ट डिस्कस नहीं किया, वो ये है जेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन यूज स्टेज एंड येट फॉर्म्स मियंडर्स। ऋतिक, मियंडरिंग कौन से स्टेज में होती है? सर मैच्योर स्टेज में। मेच्योर स्टेज में या फिर ओल्ड स्टेज में? पर जो जेलम रिवर है कश्मीर में वो यंगर स्टेज में भी मियंडर कर रही है, कैसे? दिस इज आल्सो योर होमवर्क कि कैसे कश्मीर वैली में जो मेरी यूथफुल स्टेज में रिवर है वो मियंडर कर रही है। सो सौरभ, दिस इज फॉर यू, you need to solve this, you need to give us the right answer. Arrange the following Himalayan ranges from north to south: लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सर नंबर 4। पक्का? यस सर। ऋतिक? सर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। काराकोरम, लद्दाख, देन जस्कर, देन पीर पंजाल। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। So option 4 is the right answer. So this is about कश्मीर और नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयाज। जो हमारे अभी बच के हैं हिमालयन के बाद वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का? ऋतिक, एनी क्वेश्चन ऑफ एनी टाइप? नहीं सर, क्वेश्चन तो सर अभी बिल्कुल रिवीजन करेंगे तभी आएंगे। सौरभ? नो सर। मैंने कल एक होमवर्क दिया था सौरभ, क्या दिया था? यस सर, 3 मैप बना के भेजने थे आपको। वो किए? सर एक किया है। ऋतिक आपने? मैंने सर भेज दिए हैं आपको तीनों ही। अब आगे से पता है क्या करना है आपको, क्योंकि मैं जी नोट सर। डाउन नहीं करता जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे ही मैं आपका वो ख़त्म होगा ना क्लास, उसके बाद सबसे पहले आपने मुझे मैसेज करना है कि आज का होमवर्क क्या है। पर्सनल मैसेज करना दोनों ने, ग्रुप में ही नहीं करना, मुझे करना दोनों ने। ठीक है सौरभ? यस सर। अभी आपके पास 2 दिन है, अब 2 दिन के बाद क्लास लगेगी, तो इस हफ्ते का जितना भी होमवर्क है ना वो मुझे
डे आफ्टर टुमारो तक आप सेंड करोगे दोनों, संडे के दिन सेंड करोगे, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके, गुड बाय, जय हिंद।